Hello friends, through this presentation, uh, discussion through PowerPoint presentation, I will give you the concept of potassium sparing diuretics, which has a class of aldosterone antagonist, spironolactone and epinephrine, and inhibitor of renal epithelial sodium channel, like example triametrine and amiloride. So basically, so I'm Anand Srivastava, Assistant Professor at Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research, Lucknow. First, we will talk about what is the meaning of potassium sparing diuretics. Sparing means you have to understand the meaning of sparing from conserve. As we are talking about potassium sparing diuretics, it means these diuretics are responsible for conserving the potassium ion in the blood. इट मीन्स ये पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन को कम करेंगी. ऑलरेडी अभी तक हम जितनी डायोरेटिक्स पढ़ चुके हैं, वेदर इट इज कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो कि मार्ड कैलियूरेसिस कराती थी, इट मीन्स पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन कराती थी. उसी तरीके से थायाजाइड और फेरासामाइड, ये सब की सब डायोरेटिक जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, ये पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ाती थी. लेकिन जब कभी हम पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स की बात करेंगे, वेदर इट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और रीनल इपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर, सब केस में ये क्या होंगी, कंजर्व करेंगे पोटेशियम आयन को वाइल इंड्यूसिंग माइल्ड नाइट्रियूरेसिस. थोड़ा सा सोडियम आयन का यूरिनरी वॉल्यूम में अमाउंट बढ़ाएंगी, नाइट्रियूरेसिस इफेक्ट देंगी और कंजर्व करेंगी पोटेशियम आयन को. इनको पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स बोलते हैं. अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो फर्स्ट क्लास में जैसे हमारा है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन. तो बेसिकली अगर हम एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को समझते हैं, एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक हार्मोन है, एग्जाम्पल है. तो बेसिकली ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन. और एल्डोस्टेरोन बाई चांस पेनिट्रेट करता है इन द ल्यूमेन, मीन्स बेसिकली इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा. एल्डोस्टेरोन बेसिकली एल्डोस्टेरोन एज इट इज ल्यूमिनल साइट, हियर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड and this is basolateral side there, and here it is extracellular fluid, and here will be right vascular compartment or blood vessel. So in the extracellular fluid there will be presence of aldosterone hormone. Aldosterone hormone is coming from zona glomerulosa of adrenal cortex. Now this aldosterone penetrate the basolateral membrane of epithelial cell, and this penetrate the basolateral membrane of epithelial cell and combines with already present mineralocorticoid receptor MR. MR means mineralocorticoid receptor. Mineralocorticoid receptor is already present inside of the epithelial cell, and once aldosterone transport or penetrated through the basolateral membrane, and eventually it combines with mineralocorticoid receptor. Now this mineralocorticoid receptor makes a complex with aldosterone, and these complex goes over the mRNA, and mRNA is further responsible for synthesis of aldosterone induced protein, right? Now this aldosterone induced protein is responsible for generating the adenosine triphosphate from the mitochondria. This is mitochondria, and under the influence of aldosterone induced protein, which is forming once the mRNA is activated under the influence of mineralocorticoid receptor and aldosterone complex. Now this aldosterone induced protein in one way is responsible for synthesizing ATP from the mitochondria, and in another way aldosterone induced protein is responsible for synthesizing the sodium channel. As we have already discussed that in the
late part of distal convoluted tubule and the collecting duct. Late part of the distal tubule, distal collecting duct and distal convoluted tubule and the collecting duct, there is a special channel which is called sodium channel, which allow the entry of sodium, whatever sodium that will be present on the tubular fluid is uptaken by this sodium channel, and in reverse to that, by maintaining this entry, potassium ion releases from the potassium channel from inside to outside for maintaining this potential gradient, and the sodium present in the tubular fluid is uptaken by this sodium channel inside of the epithelial cell. So the aldosterone induced protein starts synthesizing the sodium channel and also responsible for translocating them into the luminal site. It means there will be more synthesis of sodium channel, there will be more transport of sodium channel, or we can say the translocation of sodium channel from inside of the cell to the luminal side of the cell, so that more number of aldosterone induced protein, or we can say more number of sodium channel will be decorated at the luminal side, and these more number of sodium channel allow the more number of sodium ion entry inside of the epithelial cell, and this more number of sodium ion entry is responsible for releasing the more number of potassium ion for maintaining the potential difference. So aldosterone is ultimately responsible for reabsorption of sodium and excretion of potassium, right? So, and also it is responsible, this is one way. Here हमने क्या बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया इंड्यूस्ड एटीपी की सिंथेसिस कर रहा है, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सोडियम चैनल की सिंथेसिस करवाने के लिए, उनको ट्रांसलोकेट करवाने के लिए। एक बात है कि एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन और क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप की सिंथेसिस भी कर रहा है, और ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप जो सोडियम चैनल से सोडियम अंदर आएगा उसको हुक करके टुवर्ड्स द वेस्कुलर कंपार्टमेंट ले जाने का काम करेंगे, और इसकी मदद से पोटेशियम अंदर आएगा जो कि पोटेशियम चैनल से अल्टीमेटली इट मींस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन देयर विल बी हाई रिलीज ऑफ पोटेशियम, राइट, and the potassium is responsible for releasing the H dhan ion also. H dhan ion means because potassium ion is responsible for decreasing the potassium gradient, decreasing the voltage difference here. So decrease in the voltage difference is responsible for hooking the positive ion, which is hydrogen. So ultimately there will be release of potassium and hydrogen, and there will be absorption of sodium ion under the influence of aldosterone, right? So now we will discuss theoretical part. Like in the theoretical part तो ज़्यादा अच्छे से clear होगा. Aldosterone penetrate the cell from the interstitial side and combine with the mineralocorticoid receptor. The complex translocate to the nucleus, promote gene mediated mRNA synthesis. The mRNA then direct synthesis of aldosterone induced protein. The AIP include sodium potassium ATPase pump and renal epithelial sodium channel, जो कि एक्चुअली में अमाइलोराइड सेंसिटिव होते हैं. या अमाइलोराइड सेंसिटिव लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि जो हमारी दूसरी कैटेगरी के ड्रग है इनहिबिटर ऑफ रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल, वो अमाइलोराइड जो ड्रग होती हैं वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं. वो बेसिकली किस सोडियम चैनल की हम बात कर रहे हैं, यही ल्यूमिनल साइड पे जो हमारा ये सोडियम चैनल प्रेजेंट है. अभी हमने किसी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की बात नहीं की, हमने बेसिक पढ़ा कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, और इसको अमाइलोराइड सेंसिटिव सोडियम चैनल भी बोलते हैं या रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल भी बोलते हैं. तो यहां तक का पॉइंट क्लियर है. अब हम पढ़ेंगे द एआईपी आल्सो एक्टिवेट दीज सोडियम चैनल एंड ट्रांसलोकेट देम फ्रॉम साइटोसोल टू द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन. दे आल्सो ट्रांसलोकेट सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप टू द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होगा. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. Aldosterone induced protein also increase ATP production by mitochondria
All these changes promote sodium reabsorption and more potassium and hydrogen is secreted indirectly. ऑलरेडी ये हमारा पॉइंट ये क्लियर हो चुका है। स्पाइरोनोलैक्टोन बाइंड टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रिवेंट एल्डोस्टेरोन। हाँ, ये बेसिकली अब यहां से हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पाइरोनोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, राइट। और स्पाइरोनोलैक्टोन बेसिकली स्पाइरोनोलैक्टोन बाइंड्स विद द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से क्या बाइंड हो रहा है? स्पाइरोनोलैक्टोन, इसीलिए नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है। अब जब एमआरएनए से स्पाइरोनोलैक्टोन बाइंड हो जाएगा, इट मींस अब एमआरएनए से एल्डोस्टेरोन बाइंड नहीं हो पाएगा, या एमआरएनए एल्डोस्टेरोन जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बन पाएगा। और जब ये नहीं बन पाएगा, इट मींस एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, इट मींस एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन नहीं बनेगा। और एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन नहीं बनेगा, इट मींस सोडियम चैनल की सिंथेसिस नहीं होगी, इधर एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी, इधर सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप वैसोलेटरल मेम्ब्रेन पे सिंथेसाइज होके नहीं ट्रांसलोकेट होंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा होगा कि जब नंबर ऑफ सोडियम चैनल यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम चैनल जितने कम होंगे उतना ही कम पोटेशियम का यहाँ से रिलीज होगा, क्योंकि जब सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो पोटेशियम का रिलीज भी नहीं होगा। जब सोडियम की एंट्री नहीं हुई तो पोटेशियम का रिलीज नहीं हुआ, और जब पोटेशियम का रिलीज नहीं होगा, इट मीन्स पोटेशियम कहाँ रह जाएगा? इन साइड ऑफ द इपिथेलियल सेल। इट मीन्स वो नहीं जाएगा यूरिनरी वॉल्यूम में। तो इस बात के लिए हम कहते हैं कि ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है, ये पोटेशियम को यूरिनरी वॉल्यूम में एक्सक्रीट होने से रोक रही है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, स्पाइरोनोलैक्टोन बाइंड्स टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, प्रिवेंट एल्डोस्टेरोन एक्शन एंड प्रोड्यूसेस अपोजिट इफेक्ट। जबकि अमाइलोराइड अप्रोचेस द सोडियम चैनल। अमाइलोराइड जो रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर है, उनका एल्डोस्टेरोन से कोई रिलेशन नहीं है। अमाइलोराइड अप्रोचेस द सोडियम चैनल फ्रॉम द ल्यूमिनल साइड, मतलब अमाइलोराइड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से आके ल्यूमिनल साइड का जो सोडियम चैनल था कलेक्टिंग डक्ट का, उस कलेक्टिंग डक्ट के ल्यूमिनल साइड के सोडियम चैनल से अमाइलोराइड आके इसको ब्लॉक कर दिया, मींस इनहिबिट किया। अमाइलोराइड अप्रोचेस द सोडियम चैनल फ्रॉम द ल्यूमिनल साइड एंड ब्लॉक इट, रिड्यूसिंग द ल्यूमेन नेगेटिव ट्रांस एपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस। मींस यहां पे कौन सा डिफरेंस होगा? आप चूंकि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, इट मींस ये डिपोलराइज नहीं होगी, और जब डिपोलराइज नहीं होगी, इट मींस यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कौन से आयन ज्यादा होंगे? पॉजिटिव सोडियम आयन ज्यादा होंगे। उसको ओवरकम करने के लिए कौन से आयन आएंगे? पोटेशियम और हाइड्रोजन। ओवरऑल रिड्यूसिंग द ल्यूमेन नेगेटिव ट्रांस एपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस विच गवर्न्स पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एक्सक्रीशन। अमाइलोराइड पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रीशन करेंगे, राइट। नाउ फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक में बेसिकली इसकी बायोअवेलेबिलिटी माइक्रोफाइन पाउडर टैबलेट के अप्रॉक्सीमेटली 75% होती है। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है, लीवर से मेटाबोलाइज होती है। इसका जो मेन कई इसके एक्टिव मेटाबोलाइट आफ्टर मेटाबॉलिज्म बनते हैं, लेकिन इसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट जो कि स्पेसिफिक जीपेट में कई बार पूछा जा चुका है, कैनरिनॉन। इसका ओवरऑल एक्शन जो होता है लगभग 18 आवर का होता है, जबकि स्पाइरोनोलैक्टोन का टी हाफ 1 से 2 आवर का होता है, जबकि कैनरिनॉन का 18 आवर होता है। यूज की अगर हम बात करें तो चूंकि स्पाइरोनोलैक्टोन नेफ्रॉन के सबसे लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट से अपना एक्शन दे रही है, तो बेसिकली ये वीक डायूरेटिक है एंड इट्स ओन राइट, एंड ये कॉम्बिनेशन में बेसिकली यूज होती है। यूज की अगर एक बात करें तो जो डायूरेटिक पोटेशियम का लॉस करती है, उनके साथ बेसिकली हम इसको पोटेशियम को सेव करने के लिए कई बार देते हैं। तो टू काउंटर एक्ट पोटेशियम लॉस ड्यू टू थायजाइड एंड लूप डायूरेटिक। हाइपरटेंशन में बेसिकली यूज होगी, एडेमा में यूज होगी, रेफ्रैक्टरी एडेमा में। रेफ्रैक्टरी एडेमा क्या होते हैं? बेसिकली ये कायरोटिक और नेफ्रोटिक एडेमा में यूज होते हैं, जो कि एल्डोस्टेरोन लेवल जिसमें हाई होता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर एल्डोस्टेरोन लेवल हाई है, इट मीन्स एल्डोस्टेरोन क्या करेगा कि
सोडियम और वाटर, सोडियम एल्डोस्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन रिटेंशन कराएगा और पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रीशन कराएगा। तो चूंकि ये ड्रग हमारी स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन पोटेशियम को कंजर्व करेगी, पोटेशियम और हाइड्रोजन को कंजर्व करेगी, तो इस केस में हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली जहां पे एल्डोस्ट्रॉन हाई होता है वहां पे भी हम इस स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन डायूरेटिक को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनहिबिटर ऑफ रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज टू डिक्रीज पोटेशियम सिक्रीशन। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली व्हेन इट इज हाई ड्यू टू लार्ज, अब पोटेशियम का लेवल हाई कब होगा, या तो आप लार्ज पोटेशियम का इंटेक कर लो या यूज ऑफ ए डायूरेटिक दैट इनहांस पोटेशियम लॉस, जो पोटेशियम लॉस को ज्यादा करें। तो आप उस समय क्या चाहोगे, डिक्रीज करना चाहोगे। तो बेसिकली दिस इज अकम्पेनिड बाय स्मॉल इंक्रीज इन सोडियम एक्सक्रीशन। तो बेसिकली इसकी जो मैकेनिज्म है वो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर होगी। सो एमाइलोराइड सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, इट मीन्स सोडियम आयन की एंट्री यहाँ ब्लॉक होगी, और सोडियम आयन की एंट्री ब्लॉक होने से यहाँ पे सोडियम आयन क्या होगा, सोडियम डीपोलराइज नहीं होगा। इट मीन्स जब ये डीपोलराइज नहीं होगा तो उसको, जब रिपोलराइजेशन क्या स्टेप आएगा ही नहीं, रिपोलराइजेशन हमारा किससे होता था, पोटेशियम आयन से। तो जब डीपोलराइजेशन ही नहीं हुआ, सोडियम आयन की एंट्री ही नहीं हुई सोडियम चैनल से, क्योंकि सोडियम चैनल को एमाइलोराइड ने ब्लॉक कर दिया था, तो पोटेशियम आयन का भी रिलीज नहीं होगा। पोटेशियम आयन का रिलीज नहीं होगा, इट मीन्स हाइड्रोजन आयन का भी रिलीज नहीं होगा, और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन रिमेन इपिथेलियल सेल में रहेंगे, जबकि सोडियम आयन यूरिनरी वॉल्यूम में चला जाएगा। मीन्स माइल्ड नाइट्रियूरेसिस की तरह ये ड्रग एक्ट करेंगे। तो यहां से अब हम फिर देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। दिस इज accompanied by small increase in sodium excretion and the excess urinary sodium is matched by Cl minus, क्योंकि Na की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वह NaCl के फॉर्म में हो, राइट। तो NaCl Na जो कि सोडियम आयन हो रहा है वो मैच करेगा क्लोराइड आयन से, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ SCO3 यूरिन इज स्लाइटली, SCO3 के रिलीज में भी ये हेल्प करता है, बेसिकली रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो ये स्लाइटली एल्कलाइज यूरिन होती है। अगर हम कैल्शियम मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन की बात करें तो कैल्शियम मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन इसमें कम होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इज ऑफ द लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट expresses a distinct renal epithelial or amyloid sodium channel through which sodium enters the cell down its electrochemical gradient, which is generated by sodium potassium ATPase operating at the basolateral membrane. This sodium entry partially depolarize the luminal membrane creating a -15 millivolt. मीन्स ये बात कह रहा है कि चूंकि माइनस रेस्टिंग फेज पे हमारे इसकी कितनी होगी, -70 मिलीवोल्ट। अब जब सोडियम आयन की एंट्री यहाँ से होगी तो इट मीन्स -70 से ये थोड़ा राइज करने लगेगा, और सोडियम आयन की एंट्री होने की वजह से ये मिलीवोल्ट कितना पहुंच जाता है, -15 मिलीवोल्ट, राइट। तो -15 मिलीवोल्ट होने पे ट्रांस इपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फिर से नेगेटिविटी की तरफ ले जाना है, क्योंकि कोई भी सेल रेस्टिंग स्टेट में बनी रहना चाहिए। तो जब -70 मिलीवोल्ट की तरफ ले जाएंगे तो इट मींस वो क्या करेगी, प्रमोट करेगी सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम इनटू द ल्यूमेन थ्रू द पोटेशियम चैनल, राइट। तो अब ये तो तब हुआ जब सोडियम आयन की एंट्री हुई, लेकिन बेसिकली ये ड्रग क्या कर रही है, दो देयर इज नो डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन द सोडियम एंड पोटेशियम चैनल, more the delivery of sodium to the distal nephron, greater the entry through the sodium channel. Luminal membrane is depolarized to a greater extent and driving force of potassium secretion is augmented, मतलब बढ़ जाता है। Means as such all diuretic acting proximally, जितनी चाहे लूप डायूरेटिक की बात करो, थायराइड की या कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की, वो प्रमोट करती हैं पोटेशियम का सिक्रीशन, लेकिन अमाइलोराइड या ट्राइमेट्रिन ब्लॉक करती हैं ल्यूमिनल सोडियम चैनल को, जिससे वो इनडायरेक्टली इनहिबिट करती हैं पोटेशियम का सिक्रीशन को या एक्सक्रीशन को। व्हाइल द नेट एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम इज माइनर बिकॉज दिस इज ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम एक्सक्रीटेड इन यूरिन। टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम जो एक्सक्रीट हो रहा है बेसिकली वो बैक साइड से ज्यादा आ रहा है और यहां से कम। हियर इंटरकैलेटेड सेल इन कलेक्टिंग डक्ट पॉसेस an ATP driven hydrogen pump which secrete H dhan ion
इनटू द ल्यूमेन। H धन आयन को ल्यूमेन में सिक्रीट करता है। दिस पंप इज फैसिलिटेटेड बाय ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल। तो ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल बचेगा नहीं, क्योंकि ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल में क्योंकि आपने सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, सोडियम की अवेलेबिलिटी वहां पे ज्यादा है, तो अमाइलोराइड क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल को और डिक्रीज करेगा H धन आयन सिक्रीशन को, एज वेल एज प्री डिस्पोजेस टू एसिडोसिस। H धन आयन ज्यादा होगा, इट मींस H धन आयन का सिक्रीशन भी कम होगा, इट मींस यूरिनरी एसिडोसिस भी नहीं होगी। 10 अमाइलोराइड कंजर्व बोथ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन व्हाइल मार्जिनली इंक्रीज सोडियम excretion. So this is all about the potassium sparing diuretic. Thank you very much.